Hello students, how are you? Hope you are enjoying at home and studying well. So today we are going to see the third video on inverse trigonometric function. Hope you all have seen the previous ones. In the previous videos, we have already discussed the properties, different formulas of this chapter. In this video, at the beginning I will give some more formula and then we will go to the sums. Okay. So we have in the previous one we have discussed up to property number 6. Now let's start with property number 7. Now this property 7 and property 8 is based on multiple angles. So what, like in class 11 we have done the formulas of what? Suppose sine 2 theta is what? Tan inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta. Cos 2 theta is what? 1 minus cos square theta, 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. And tan 2 theta is what? 2 tan theta by 1 minus tan square theta. Okay? So this formula we know. This formula we are studying in class 11. Now what is the corresponding formula of the inverse? To see what we will do, we are going to write the corresponding formula of inverse. So suppose from here what we can say, 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square. Okay students? So 2 tan inverse x is what? Sin inverse 2x by 1 plus x square. How to prove it? It is very easy to prove it. I will show one proof later. Suppose if I say take x equal to tan theta. Suppose I take x equal to tan theta. So what will I get? 2 tan theta by 1 plus tan square theta. That is what? Sin 2 theta. I will get, proof I will show once. First let's write down the formula. Now from this, what will you get? 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. And 2 tan inverse x equal to what? Tan inverse 1 minus x square by, tan inverse 2x by 1 plus x square. Okay? These are this is the most important we will require in all sums. Okay, so 2 tan inverse x is what? Tan inverse 2x by 1 minus x square. It will be a what? Minus, and there is only small difference. Tan inverse और sin inverse वाले में सम में बहुत कम अंतर है. यहाँ पे क्या है? 1 plus x square है, यहाँ पे क्या है? 1 minus x square है. ये हो गया फॉर्मूला. हो गया? ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 7. अब प्रॉपर्टी नंबर 8 में आते हैं. हम लोग sin 2 थीटा का फॉर्मूला और क्या पढ़े थे? sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा. और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है? तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin इनवर्स x क्या होगा? 2 sin इनवर्स x क्या होगा? sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और 2 cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. ओके, cos इनवर्स 2x स्क्वायर minus 1. Okay students, so this is about the formula of sin inverse and cos inverse. So at range we know that what is the range of sin inverse x, cos inverse x, same range. So I am not writing the range here because whatever range we know, that is range is applicable here also. And 2 tan inverse x, the same formula. So 2 tan sin inverse x, this formula, 2 cos inverse x, this formula, and 2 tan inverse x, this formula. Okay, so this is all about the different formulas. Now I will give 1-2 formula of the compound angle. Okay, I hope you have writing the formulas. अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो पॉज करके लिख लो फॉर्मूला. अच्छा, अब देखो हम लोग क्लास 11 में कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? साइन ए प्लस बी
क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस होगा तो माइनस, और कॉस ए प्लस बी क्या पढ़े थे, कॉस ए कॉस बी उल्टा साइन, माइनस प्लस, मतलब प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, साइन ए साइन बी। ओके, ये क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, मल्टीपल एंगल कंपाउंडिंग है, सॉरी वी नो। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला मल्टीपल में इनवर्स में क्या होगा, जैसे मान लो हम बोले साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या होगा, एक्स, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स आ गया, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स, ये तो फॉर्मूला हम पहले दे भी चुके हैं, ये फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, क्या कंडीशन था, एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है, एक्स वाई लेस देन 1। और बाकी केस में हम लोग जो प्रॉपर्टी नंबर 6 में देख चुके थे, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा आ रहा तो क्या हो रहा है, पाई माइनस नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह वगैरह। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज। अब हम लोग जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वी विल नाउ क्विकली स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, तो प्लीज लेट्स डू इट। फर्स्ट हम जो करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है evaluate tan sin inverse 3/5। फर्स्ट क्वेश्चन, evaluate tan sin inverse 3/5 प्लस cot inverse 3/2 प्लस cot inverse क्या 3/2। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर tan है और यहां पर साइन इनवर्स कॉट इनवर्स, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी tan इनवर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे हम, प्रॉपर्टी क्या था, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्रॉपर्टी क्या था, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू रूट ओवर x बाई रूट ओवर 1, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ये। तो चलो पहले कर लेते हैं tan, तो ये बन गया tan इनवर्स x, यहां पर x के जगह पर क्या है 3/5 बाई रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और ये कॉट इनवर्स x है, तो कॉट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है, तो इसको हम लोग खाली रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2/3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करो तो नीचे में क्या आएगा 4/5, क्योंकि 25 माइनस 9 क्या होगा 16, तो ये आएगा 4/5, तो 3/5 4/5 5 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो अब क्या हुआ tan इनवर्स, तो अब लोग हम लोग यहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 4/3, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये तो यहां पे क्या है 3/5 है, और ये हो गया क्या 3/5 और ये 4/3, तो अब ये क्या आएगा 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ओके, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, जो जस्ट अभी बोर्ड पे लिखे थे, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ab, वी हैव अप्लाइड दैट फॉर्मूला। तो ये tan इनवर्स कट गया, क्या मिला, अब इसका एलसीएम ले लो, ऊपर में 12, 9 प्लस 8, नीचे में भी 12 और 12 माइनस 6, तो ये इसको हम यहां चाहे तो tan इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर नहीं तो ठीक है 17/6, तो वैल्यू क्या मिला 17/6। ओके स्टूडेंट्स,
तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ये हो गया वैल्यू इस सम का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में आईएससी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब एक आईएससी क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इफ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इफ tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स C इक्वल टू पाई, प्रूव दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू ABC। ये क्वेश्चन है। ओके, कि if tan inverse A plus tan inverse B plus tan inverse C equal to pi, then prove that A plus B plus C is equal to ABC। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक टर्म को उधर ले जाते हैं। तो क्या मिला, tan inverse A plus tan inverse B equal to क्या मिला, पाई माइनस tan inverse C। अब हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। tan inverse A plus tan inverse B का फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग क्या लिखे थे, a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan, सॉरी इसको लिख दो पाई माइनस tan इनवर्स सी। अब देखो a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, देखो सपोज अगर मान लो tan इनवर्स एक्स वाई हो रहा है तो x क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू tan y। ओके, तो ये tan इधर चला गया तो क्या बन गया, tan पाई माइनस tan इनवर्स c। ओके, तो आई होप यू हैव रिवाइज्ड। हम बोले थे पहले भी कि आप लोग 11 क्लास का फॉर्मूला सब रिवाइज कर लीजिएगा। तो हम लोग क्वाड्रेंट कंसेप्ट tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यहां पे इसको थीटा मान लो, tan इनवर्स c, तो क्या मिलेगा, तो a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, क्योंकि यहां पे कौन सा फॉर्म बन रहा है, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब tan इनवर्स सी क्या होगा, tan इनवर्स कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी इक्वल टू माइनस सी। तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी प्लस ABC। तो क्या है, C को उधर डाल लो, तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ABC। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आउट, तो ये प्रूव हो गया हम लोग का सम नंबर 2। ओके, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली इफ यू आर नॉट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम में। ओके, प्रूव दैट, ये आईसी का, ये भी अगला सम आईसी का है। प्रूव दैट, तो लेट मी रब द बोर्ड। ओके, प्रूव दैट साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सॉरी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू प्रूव करना है। आईएससी 2000 का सम है ये। तो साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग को tan इनवर्स में प्रूव करना है। तो देखो वैसे भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, LHS। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स x है तो क्या होगा, उलट जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स होता है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर आप लोग नहीं लिखे तो प्लीज हम
बोले हैं, बार बार बोलते हैं कि प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूला शोन इन द 3 वीडियोस, एंड उसके बाद जब भी आप लोग सम करेंगे तो यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम इट। ओके, तो चलो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पूरे को x मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा इसको भी लिखो, tan इनवर्स इस पूरे को x मानना है, तो स्टार्टिंग क्या है cos के लिए, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई, अब स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो यहां पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहां पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1, और ये कट जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, x प्लस 1। तो इसको तुम लोग रफ में, और यहां पे क्या आएगा देखो, तो यहां पे मिला x, सिर्फ x मिला, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, और एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ 1 बचेगा, और यहां पर क्या मिला, tan इनवर्स क्या आएगा, यहां पे कट के आएगा हमको 1 बाई एक्स प्लस 1। दिस इक्वल टू, वेरी सिंपल, तुम लोग खुद ही इसको अलजेब्रा है, सिंपल सिंप्लीफाई करके देख सकते हो क्या आ रहा है। तो ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, अब दोनों tan में आ गए, तो जब दोनों tan में आ गया, आंसर भी tan में लाना है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्विकली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी। अब इसके एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे में क्या आएगा 1, तो आ गया क्या, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का सम प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं फिर से एक आईएससी के क्वेश्चन में, आईएससी 2014। ओके, तो बोर्ड हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द सम आईएससी 2014, आज का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, इवैल्यूएट tan inverse, tan evaluate tan 2 tan inverse half minus 2 tan inverse half minus cot inverse 3। ओके, सिंपल सम है। इस सम में हम लोग पहली बार मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x। तो हम लोग क्या बात किए थे अभी, आज वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसको ये कर लेते हैं, तो tan, इसको भी छोड़ देते हैं, tan इनवर्स 2, व्हाट इज x, हाफ बाई 1 माइनस 1 बाई 4, और ये क्या बन जाएगा, ये सिर्फ रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई 3। ओके, क्योंकि tan का रेंज तो रियल नंबर है, यहां पे कुछ भी हो सकता है यहां पे, ठीक है। तो tan, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 मतलब 1 माइनस 3 बाई 4 मतलब 4 बाई 3 माइनस tan इनवर्स 1 बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, व्हाट इज दैट, 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, 1 प्लस 4 बाई 3 इंटू 1 बाई 3। तो एलसीएम ले लो, 3, ठीक है आएगा 1 बाई, और नीचे में कितना आएगा, 9 प्लस 4 13 बाई 3, तो tan इनवर्स कट गया, कितना आया आंसर, 3 बाई 13। ओके, तो व्हाट इज आंसर, 3 बाई 13। इज दैट क्लियर। तो दिस इज द, तो ये 4 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, 3 कट जाएगा,
तो यहाँ पे बचेगा तो 3 बाई, तो 13 बाई ये 9 और ये 9 ऊपर चल जाएगा तो आंसर विल बी 9/13, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, ये पूरा 1 हो जा रहा है, तो ये सिर्फ 1 बाई दिस, दैट इज 9/13, दिस इज द आंसर। ओके, तो ऐसे सम्स हम लोग को बस प्रॉपर्टी अप्लाई करने हैं, किस कहां पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगा उसके अनुसार हम लोग को सम्स डील करना है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो अलग तरह के सम चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan हाफ sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब देखो, ये सम करने का बहुत तरीका है। सिंपलेस्ट तरीका क्या है, देखो, लेट x इक्वल टू tan थीटा एंड y इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, x को क्या मान लेते हैं tan थीटा, y को क्या मान लेते हैं tan अल्फा। तो क्या हो जाएगा, tan हाफ, अब यहां पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, आज स्टार्टिंग में बताए थे, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है और ये cos 2 थीटा यानी cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है। तो चलो पुट कर देते हैं, tan हाफ, तो ये क्या बन गया, sin इनवर्स sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 अल्फा। तो बचेगा क्या, sin इनवर्स sin कट जाएगा, यहां क्या बचेगा 2 थीटा, यहां क्या बचेगा 2 अल्फा, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा और फाइनली मेरे पास बचेगा थीटा प्लस अल्फा। अब इसके जगह तुम वैल्यू पुट कर दो, इसका फॉर्मूला पुट कर दो, tan थीटा प्लस tan अल्फा बाई 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पकड़े थे, ये तो हम लोग tan थीटा की जगह क्या लिए थे x और tan अल्फा की जगह पे y, तो वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो दिस इज द आंसर, तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट वी हैव डन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं नेक्स्ट सम, एक बड़ा सम में आते हैं, दैट इज द ओके IAC 2012 प्रूव दैट, ओके, अब हम लोग को जो प्रूफ करना है क्या, प्रूव दैट cos इनवर्स 63/65, प्रूव दैट cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। ओके, तो ये ISC 2012 का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टू डू दिस। तो देखो करना क्या है, हम लोग पहले, ये तो ऑलरेडी tan में है पर 2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और इस cos को tan में बदलना होगा। कैसे, कौन सा फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जब दोनों tan में आ जाएगा तो हम लोग फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद tan को फिर sin में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे हम बता रहे हैं। अच्छा देखो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको tan में बदलो, tan इनवर्स क्या बताए थे, रूट ओवर 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर बाई 63/65 प्लस tan इनवर्स 2
तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x बाई 1 माइनस 1 बाई 25। तो क्या आया ये? तो ये तुम्हारा क्या आएगा? 63 का रूट ओवर 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब बाई रूट के बाहर 65 निकलेगा और वो 65 इसे कट जाएगा बाई 63। और tan इनवर्स ये क्या आएगा? 2/5 और 24/25। तो 2/5 इंटू 25/25 माइनस 1 24। ओके, अब क्या होगा? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 256। 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर इज व्हाट? 256। वो किसका स्क्वायर है? 16 का। तो इसको तुम लोग, तो कैलकुलेटर अलाउड है, जैसे भी है तुम लोग चेक कर सकते हो। ये आएगा 63/63 और ये सिंपल है ये। तो यहां पर 12 और यहां पर क्या आएगा? 5। तो कितना निकला? tan इनवर्स 5/12। ओके, तो tan इनवर्स 5/12। नाउ वी विल अप्लाई। अब दोनों tan में आ गया, यहां भी कोई नंबर नहीं है, यहां भी tan नहीं है, तो क्या आ गया? तो ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से यहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। कितना होता है स्टूडेंट्स? वो होता है tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a b। ओके, तो दिस यू कैन सिंप्लीफाई, टेक द एलसीएम 63 इंटू 65। और अगर इसको हम लोग एलसीएम लोगे तो आएगा 507 बाई 676। ये सिंप्लीफाई करके आएगा tan इनवर्स 507 बाई 676 आ गया। अब 507 बाई 676 ये किससे कटेगा? अब ये आएगा कितना? ये तुम्हारा, अगर तुम इसको करेंगे तो हम लोग कितना आएगा? ये आएगा 3/4। ठीक है, दिस विल बी, इसको डिवाइड सिंप्लीफाई कर कितना आएगा? 3/4। अब हमको क्या करना है? तो अब ये तो हो गया। अब ये आरएचएस ले लेते हैं। चलो अब आरएचएस लेते हैं। तो आरएचएस में क्या दिया हुआ है? आरएचएस में क्या दिया हुआ है? आरएचएस में दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या था? x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3/5 बाई रूट ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर, मतलब 9/25। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? ये 16 माइनस 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। ये हो गया 25 माइनस 9 16। तो 3/5 और यहाँ पे 4/5 मतलब 3/4। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों, या फिर हम लोग इसको टाइम को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? या फिर एक और तरीका है, हम लोग एक फॉर्मूला और अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला का अप्लाई नहीं किया। नहीं तो तुम लोग चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट तुम लोग उसको कर सकते हो। ठीक है, तब भी हम लोग का आंसर वही आएगा x। ठीक है, एनीवे डजंट मैटर। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि वी कैन गेट इट। तो 3/, यहां पे देखिए प्लस है, यहां पे माइनस होता है, यहां पे प्लस होगा। तो देयर इज वन मोर फॉर्मूला, यू कैन एड इट। tan इनवर्स x, tan से अगर साइन लाना है, अभी तक हम लोग क्या करते थे? साइन से tan नहीं आते थे। लेकिन अगर tan से साइन लाना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सम, दैट इज व्हाट, and this is the question number 23. Simplify. Okay, question number 23. Simplify. Simplify. Question. Next question. That is the, okay, simplify of the NCERT. NCERT का एक क्वेश्चन है ये। Simplify tan inverse 3a square x माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ट्रिक क्या है? लेट
x इक्वल टू a tan थीटा। चलो देखते हैं क्या आता है। तो 3a² तो पहले से ही है और x से जगह पर क्या पुट करना है हमको, a tan थीटा। यहां पे क्या आएगा, a क्यूब tan क्यूब थीटा बाई a क्यूब माइनस 3a और यहां पे a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो फाइनली आया क्या, फाइनली आया, अगर देखो अब एक चीज देखो, यहां भी a क्यूब आ रहा है, यहां तो a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है। तो अब a क्यूब को कॉमन लेके हटा देंगे तो क्या दिखेगा हमको, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आई होप यू रिमेंबर क्लास 11 में ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था tan 3 थीटा का। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, दैट इज व्हाट, 3 थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, अब देखो यहां पर, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई ए। अगर हम यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा, x बाई ए, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो स्टूडेंट्स, 3 tan इनवर्स x बाई ए। ओके, 3 tan इनवर्स x बाई ए। तो दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करना था तो इस बड़े चीज को हम लोग इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x बाई। ओके स्टूडेंट्स, hope you have understood. Now let's go to one more next type sum. If sin inverse x plus tan inverse x, अगला जो सम है, तो प्लीज अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला जो सम करने जा रहे हैं वो है if sin inverse x plus tan inverse x equals to pi by 2। देखो क्वेश्चन है, if sin inverse x plus tan inverse x equal to pi by 2, prove that 2x square plus 1 equal to √5। ये प्रूफ करना है हमको, 2x square plus 1 is equal to क्या, √5। अब देखो, तो गिवन कंडीशन तो ये है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x में ला दिए, ठीक है, साइन इनवर्स x उधर लेके चले गए। Then what we will get, tan inverse x equal to cos inverse x। कैसा आया, because we know sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2, either property 2 या 3 किसी एक में मैंने बताया था, you can check your copy। तो we have applied, we have learned this formula। तो इस फॉर्मूला से अगर इसको इधर ले जाते हो तो बचता क्या है, cos inverse x। अब इस cos को tan में बदल दो, क्योंकि दोनों तरफ tan tan है, कैसे बदलेंगे, तो क्या आ गया, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स, क्या था फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, अब सिंपल सी बात है, तो ये हो गया cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ओके, अब implies that, तो x इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, tan इनवर्स हटा दिए, ए भी tan, टेकिंग tan बोथ साइड्स, हट गया। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अच्छा, उसके पहले एक स्टेप और लिख सकते हो, तुम लोग चाहो तो लिख दो x स्क्वायर इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये x स्क्वायर तो रूट के अंदर में है, और रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या मिलेगा, x4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, तो इंप्लाइज दैट, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो मान लिए कि एक्स स्क्वायर को y मान लेते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर को y मानते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहां से y का वैल्यू क्या निकला, वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो उसको बोर्ड रफ कर देंगे,
अच्छा, तो अब देखो, तो हम लोग इक्वेशन क्या बना यहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म तो होगा नहीं, 1 से 1 लाना है, इम्पॉसिबल। लेट्स गो टू द सीधे जाएगा फॉर्मूला। वो क्या है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पे थोड़ा सा एक साइन मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो y इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ओके, सीधा जाए फॉर्मूला, यू हैव डन इन क्लास 10। अच्छा, तो 11 ऑल्सो, और ये क्या है माइनस 1, तो क्या है माइनस 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू क्या है वो भी 1 है, और c का वैल्यू कितना है माइनस 1 है। प्लस माइनस, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 बाई 2, तो y का वैल्यू क्या निकला माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। यही तो। अब जब देखो y एक्चुअली है क्या, y एक स्क्वायर है, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा y कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि y क्या है, y इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव नंबर ले लो, रूट 5 माइनस 1 बाई 2। अब y के जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर बैठा दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस 1 इक्वल टू रूट 5, ये तो प्रूफ करना था। ओके, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, द नेक्स्ट सम वी आर गोइंग टू डू इज प्रूव दैट और फाइंड द वैल्यू ऑफ sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3. Okay, so this is the question. Sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3. You have to find the value of this question. Okay, now see here sec square is there and inside it is tan inverse, it will not cut, कटेगा नहीं, यहाँ पे tan inverse है, यहाँ पे sec square है, तो क्या करते हैं, तो इसका कनेक्ट कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू, अब एक काम करो, अब लिखो लेट tan inverse 2 को x मान लेते हैं, ठीक है, और cot inverse 3 को क्या मान लिए y, तो tan x का वैल्यू क्या आ गया, tan x का वैल्यू 2 आ गया, और cot y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक। तो अब यहां पर देखो, therefore the sum becomes, अब सम क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर इस पूरे को क्या माने हो x, cosec स्क्वायर इस पूरे को क्या माने हो y, तो क्वेश्चन क्या बन गया, sec स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर y। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर y, तो क्या बन गया 2 प्लस, अब tan स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, tan x तो 2 था ना, तो tan स्क्वायर x क्या बन जाएगा 4, और cot y 3 था, तो cot स्क्वायर y क्या बन जाएगा 9, तो ये आ गया 50। ओके, तो दिस वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सम दैट वी हैव डन। तो आई होप whatever sums is done in this video, it is very very clear, तुम लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। तुम लोग दूसरे अपने बुक से और सम्स प्रैक्टिस करो, और अच्छा से प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस इज द मेन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।